Welcome to this webinar of CFA Your Gateway to Global Finance. This is the webinar that each and every student aspires. अरे यार शायद मेरे को ये पहले ही मिल जाए. This is one kind of webinar. I remember my friends are telling about this webinar, this kind of webinar and all. But like यार तुम लोग की बहुत अच्छे हो. I came to know Sanjay sir a bit late. तुम लोग बहुत lucky हो. This is what I always felt. And also, if you don't know who is Sanjay sir, ऐसा होगा ही नहीं है बिकॉज ईच एंड एवरी वन नोज हाउ रेप्यूटेड ही इज. फाइनेंस में एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोफेशन सीएफए को कैसे मान जाते हैं ना, वैसा इफ यू सी इन टॉप लीडिंग प्रोफेसर्स ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, you'll definitely hear who is Sanjay Saraf sir is, whether it be if you see in the CFA curriculum or if you see even in the CA curriculum, you would know who Sanjay sir is. And yeah, today he will be taking this session to introduce to you what are the various opportunities that one can have through pursuing CFA, and what are the different precautions and what are the different levels, each and everything. He'll go in depth and he'll explain to you each and everything. And I request one thing to you, each and everyone. I'm sure you'll be having many doubts, many doubts. I just want you to jot it down on a side, and you make sure if those points are not covered at the end of the session, please, or during the session, if you think that your point is not being covered, please ask them in the Q&A tab, not in the chat tab, because questions would be easier, like all the different kind of questions and all. It would be easier for us to look at in the Q&A tab and to give prompt response. Over to you, Sanjay sir. So here we are. Good morning, all of you, for a Sunday webinar, and this one is closest to my heart. Abhinav, Aditya, Ajit, Akshat, Deepak, Dawn, Gaurav Rathi, Gaurav Mali, Krish Sachdev, Manasi, Manohar, Manushi, Naina Agarwal, Prakash, Rachna, Rajat, Ritik, Samarth, Sanchit, Shubhankar, Sudamani, Tanmay, Vedant, and I'm not able to read more. So, a very good morning to all of you. I have been known by reputation to speak to the point when it comes to careers and when it comes to the CFA program. So, believe me, you will not be disappointed. आपका जो valuable 1 hour 45 minutes जो भी 45 minutes या 1 hour अगर लगता है, हो सकता है 1.5 hour लगे, but that is going to have a very positive impact, a high level of clarity. Tell me something that आप लोग में से कोई ऑलरेडी CFA कर रहा है क्या? आई एम लुकिंग एट द चैट. टेल मी, आप लोगों में से कोई ऑलरेडी CFA कर रहा है क्या? Yes, Aryan is already doing CFA. Rajat Malhotra is already doing CFA. Abhinav is already doing CFA. Aryan is already doing CFA. Okay, Tanmay is already doing CFA. So some of the people are already doing CFA. Okay, which are the ones who are not yet doing CFA? कौन से आप लोग पार्टिसिपेंट्स हैं जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट? ओके, अक्षत, कृष, नेहा, सुष्मिता, नैना, Aditya. Naina said, I'm planning to do CFA, but since I am in the first year of college, okay, I'll talk about it. Prakash, Manushi, Pratik, okay, chalo. So, let's be very frank about the discussion. जब आप एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को सोचते हो करने का, तो इन दैट केस वो सर्टिफिकेशन अपने क्यों सोचते करने का, क्या जरूरत है? द फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग इज कि फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ग्रेटनेस इन लाइफ, फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग अ सॉलिड करियर, व्हाई डोंट वी जस्ट एक्वायर स्किल्स? देयर इज नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन. जम के नॉलेज लेते हैं और कोई कोर्स नहीं करते हैं. आजकल तो AI है, वरना इतने सारे रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स है. तो लेट्स नॉट डू एनी सर्टिफिकेशंस. स्ट्रेट अवे लेट्स गो इनटू द क्या बोलते हैं, रियल लाइफ, एंड ट्राई टू एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड विद द हेल्प ऑफ टूल्स. तो आई थिंक मैं अगर
अपने लाइफ को रिवर्स करता और क्लास 12 के बाद ये सोचता, तो मेरे मन में ये आता कि यार क्यों झमेला ले, लेट्स नॉट डू एनी प्रोग्राम ना. बट द प्रॉब्लम इज दैट everybody knows, your parents knows, and you can see every day that if you want to apply for a job at any particular credible place, not at any other place, but at a credible place, the likes of McKinsey, the likes of BCG, the likes of Bain Capital, the likes of Morgan Stanley, Goldman, or even the Indian counterparts, ICICI Securities, HDFC Securities. Okay, if you want to apply to these firms, you will find that they will definitely look for some certifications that you have earned. It is a must. Tell me if you differ from it. बताना प्लीज आप लोग का क्या व्यू है, एम आई करेक्ट और इनकरेक्ट? हाँ, होगा कि अपने पापा लोग बहुत कुछ अचीव कर लिए लाइफ में, और हो सकता है किसी किसी के पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशंस नहीं किया है एंड दे हैव अचीव्ड ग्रेट इन लाइफ. बट आई कैन नॉट फाइंड अ सिंगल पेरेंट, बिलीव मी, हु विल से दैट मैं अपने बेटे से कुछ भी पढ़ाई नहीं करवाऊंगा. इट डजेंट हैपन दैट वे. तो सर्टिफिकेशन इज अ मस्ट. जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है उसको ऐसे एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, आई कैन नॉट टेल यू. माने देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ हाफ सीए इन इंडिया. यस, हाफ सीएज इन इंडिया भर भर के है, गली में, बिल्डिंग्स में, हर जगह हाफ सीएज मौजूद है जिन्होंने सीए बीच में छोड़ दिया. ऑफ कोर्स सीएफए का भी वही हाल होने वाला है, जहाँ सीएफए बीच में छोड़ देते हैं. बट ऑब्वियसली सीए इज मच मच पॉपुलर और हाफ सीएज भरे हुए हैं. एंड यू जस्ट आस्क देम कि यार तेरे लाइफ का सबसे बड़ा पेन क्या है, एंड दे विल टेल यू काश सीए कंप्लीट हो जाता. यू आस्क देयर पेरेंट्स, यू आस्क एनीबडी, देयर स्पाउस अगर मैरिड हो गए हैं, सुबह से रात तक केवल उसी पेन में गुजरते रहते हैं. तो बिलीव मी, सर्टिफिकेशंस मैटर. और जिसको भी लगता है सर्टिफिकेशंस डू नॉट मैटर, जस्ट स्ट्रिप द सर्टिफिकेशन फ्रॉम somebody's name. Let's see whether somebody is ready to sacrifice the certification. It won't happen. Certifications matter. India में certifications matter more and at an early stage. Why? Because India में commerce education is deeply paralyzed, isn't it? Which colleges do you belong to? Can you please speak out? या आपने कॉलेज किया था, हो गया, तो कौन से कॉलेज किया था? मैं नाम नहीं लूंगा, प्लीज बोलिएगा. ओके, somebody says Xavier's. आपने जब किया था कॉलेज या कर रहे हैं तो कौन से कॉलेज से? Somebody saying Xavier's, somebody MIT Noida, somebody Xavier's, Punjab University Chandigarh, MMG, NMIMS, Goenka College, संजीवनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, पीजॉक पुणे, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, SRCC, क्राइस्ट कॉलेज, हंसराज कॉलेज. रोहित अग्रवाल इज फ्रॉम मिशिगन. इट्स ओके, आप बीबीए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एमईटी से. अल्केश दिनेश, मंडे यूनिवर्सिटी, मोहन होगा लगता है. उत्कल यूनिवर्सिटी, ठीक है. मास्टर्स यूनियन, somebody is from Masters Union, Ashoka University. Beautiful. So we have a great mix. Now let me tell you something. Somebody is doing CA, I think graduation नहीं कर रहे हैं, that's fine. So आप कहीं से भी अगर कर रहे हैं ना ग्रेजुएशन, या आपने किया होगा, जैसे मैंने किया जेवियर से, कैलकाटा से, आज तक एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि कॉलेज में क्लासरूम में बैठ के मेरे को ऐसा फीलिंग आया, वाह व्हाट अ लेक्चर. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? कॉलेज में बैठ के, अब ऑब्वियसली कोई कोई का कॉलेज चालू होना बाकी है, बट कॉलेज में बैठ के यू फेल्ट वाओ व्हाट अ लेक्चर. इट नेवर एवर हैपेंड विथ मी. क्लास 11 12 में मेरे साथ ऐसा हुआ था. आई वॉज इन सेंट लॉरेंस एंड देयर वाज अ प्रोफेसर ओवर देयर, प्रोफेसर मोलीनाथ मुखर्जी, MM. क्या इकोनॉमिक्स कराते थे वो. मैंने फर्स्ट टाइम ही रिलेटेड डेरिवेटिव्स कैलकुलस टू इकोनॉमिक्स. ओके, एंड आई अंडरस्टूड एनीथिंग मार्जिनल, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज. ठीक है. या अगर टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल. बिलीव मी, व्हेन यू आर एबल टू लिंक सब्जेक्ट्स ना,
अ डिफरेंट सेटिस्फैक्शन कम्स इन कि मैथ्स को लिंक कर पा रहे हैं विथ इकोनॉमिक्स को लिंक कर पा रहे हैं इक्विटी मार्केट से, मजा आ जाता है. Stats is not 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, but stats is actually applicative, काम का है, जो रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग में काम आ रहा है, क्वांट फाइनेंस में काम आ रहा है. तो अपना कॉमर्स एजुकेशन जिस भी कॉलेज में आप कर रहे हो, इट इज हाईली ब्रोकन. आई वुड से दैट Ashoka Masters Union are a little bit differentiated in this regard because the quality of education is higher. अशोका मास्टर्स यूनियन उनको मैं अलग लीग में रखूंगा, बट बाकी सबको एसआरसीसी जेवियर्स वगैरह उन सबको मैं सेम लीग में रखूंगा. द ओनली गुड थिंग अबाउट एसआरसीसी जेवियर्स क्राइस्ट इज दैट as a result of being over there, you are with the toppers. You are in an ecosystem which is very competitive. So something or the other is happening. And plus, college के third year में fourth year में companies will come and placements हो सकती है. That is the advantage जो एक गोइंका कॉलेज परहैप्स नहीं ऑफर कर पाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो एक डिफरेंस है कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और एट द सेम टाइम वहां पे आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलेगी. बट अदरवाइज एजुकेशन की बात करें तो कॉलेज में सीखने का बहुत खराब है. एक्सेप्शंस बीइंग द न्यू एज कॉलेजेस लाइक अशोका, द न्यू एज कॉलेजेस लाइक मास्टर्स यूनियन. ठीक है ना? तो दो रीजंस है वाई सर्टिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने वो क्लियर किया. अब बात है इंडिया में विच इज द मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशंस इन फाइनेंस. इंडिया में विच इज द मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशन इन फाइनेंस. मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अदरवाइज बिकम्स बोरिंग टू जस्ट लुक एट अ सर्टेन फेस. ओके, कोई अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन बोलता रहता तो अलग बात होता. ठीक है. सो माय फर्स्ट पॉइंट वाज, ओके, माय फर्स्ट पॉइंट वाज पॉइंट नंबर वन, सर्टिफिकेशंस नॉन निगोशिएबल. करना ही पड़ेगा सर्टिफिकेशंस बिकॉज द कॉलेज स्ट्रक्चर इन इंडिया इज टोटली ब्रोकन. ठीक है. नंबर टू, the most popular certification, the most popular certification in India in finance. Yes, please. Which is the most popular certification? अभिनव ने बहुत बड़ा लेक्चर लिखा है. अभिनव, आई एम नॉट एबल टू रीड इट, अभी एकदम नहीं रीड कर पाऊंगा. So the most popular certification, I am surprised I did not get a unanimous answer. The most popular certification is CA. We have to admit. आप जहां पे भी रहते हैं, whether you stay in Mumbai or Calcutta, or you stay in Ranchi, or you stay in Odisha, Sambalpur, or you stay in Vishakhapatnam, Hyderabad, wherever you stay, believe me, in India, and you will find that chartered accountants आपके अगल बगल में आपको दिखते हैं. या तो CAs या हाफ CAs, या तो CAs या हाफ CAs. We have to understand. Now, if we go to the first principles, chartered accountant, if you look at the name, it is focusing on accountancy. If we go to accountancy, it is ultimately reporting. If you think about reporting, it is not decision making. What is reporting? Reporting मतलब जो decisions business में लिए जा रहे हैं उनका हिसाब किताब. Of course, it involves auditing also, it involves taxation also, it involves legislation also. So CA program has taken the entire ambit of accounts, audit, taxation, regulation. इनमें ये लोग चैंपियन है इंडिया में. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड इतना ज्यादा टफ स्ट्रक्चर है सीए का. द कंटेंट इज सो बैड, द करेक्शंस आर सो बैड, द स्टडी मैट इज सो बैड. Okay, the entire examination structure is so broken that ultimately जाके people who are in the boundary, they tend to not pass. जो सुपर सुपर टॉपर उसका बात अलग है, बट जो लोग मोरलेस ठीक है ना, उन लोग का एक लक का अफेयर हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर. यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू लर्न 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 वॉमिट, लर्न वॉमिट, लर्न वॉमिट. ठीक है. तो कोई भी पर्सन जो अपने में से ऐसा है ना जिसको लगता है कि सर मेरे को लर्न करने में मजा आता है, मैं रटने में चैंपियन हूं, उसके बाद मैं एग्जाम में लिख के आता हूं और मेरे को मजा आ जाता है, तो भाई आप सीए करो. बिलीव मी, आप सीए करो.
आपको सीए करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको लर्न करने में मजा आता है और आपको लगता है लाइफ इज अबाउट लर्निंग एंड कॉपिंग, तो प्लीज आप सीए करो। ठीक है ना? डेफिनेटली गो फॉर सीए। बट इफ यू हेट मगिंग अप कि सर मेरे को नहीं पसंद है मगिंग अप, आई डोंट लाइक लर्निंग, ठीक है? मेरे इंटर्न्स में देर इज अ पर्टिकुलर इंटर्न हु इज सो ब्राइट, वंडरफुल गाय, बिलीव मी, आई कैन सी हिम, जेवियर्स में पढ़ता है। 2 बार सीए फाउंडेशन फेल हो गया, 2 बार सीए फाउंडेशन फेल हो गया बिकॉज ऑफ मैथ्स एंड लॉ। मतलब पॉइंट इज दैट क्या फायदा उसको परस्यू करके, बिकॉज वो मैथ्स जो सीए फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं वो तो इंटर और फाइनल में रिक्वायर्ड नहीं है। वो इकोनॉमिक्स जो ये लोग सीए फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं वो इंटर और फाइनल में रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो भाई पागल हो गए हो क्या? वाई आर यू टीचिंग अस मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स व्हेन इट इज नॉट देयर इन सीए इंटर एंड सीए फाइनल? ठीक है, तो why don't you have a consistent philosophy of what is to be taught to CA students? आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इकोनॉमिक्स आना चाहिए, आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टेटिस्टिक्स आना चाहिए, पर वो स्टेटिस्टिक्स वो इकोनॉमिक्स तो सीए इंटर और सीए फाइनल में भी होना चाहिए था ना। पर नहीं, वहां छोड़ दिए ये लोग, बिकॉज बाद में ये लोग को केवल वाउचिंग करना है, चेक करना है। मतलब जो लीडरशिप है सीए में वो सोचती ही नहीं है व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द करंट जनरेशन ऑफ एआई, बिग डेटा, एमएल। ओके, जहां पे एल्गो ट्रेडिंग चल रहा है, जहां पे रोबो एडवाइजो चल रहा है, वहां पे ये लोग कहाँ हैं? ठीक है, तो मेरे को तो पर्सनल लेवल पे आई हैव ऑलवेज स्पोकन इन ऑल माय फोरम्स। मेरे 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम है, तुमको जो करना है करो। तो मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, मैंने द माय माय डॉटर, शी इज डूइंग फिजिक्स, उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, भाई करो, कोई बात नहीं है। ठीक है, माय सन इज इन क्लास 8 एंड ही इज इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, ड्राइंग एंड ऑल दैट। ठीक है, सो ही विल डू दैट, बट सीए नहीं करना है कोई भी हालत में। मैं जिस पे मेरा बस चलता है उसको सीए नहीं करने दूंगा। आई हैव सीन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स एंड एफर्ट इन सीए। ओके, नाउ यू विल से दैट सर बट कुछ कुछ सीएस क्या लाइफ में अचीव कर लिए, कितने ग्रेट है। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सीए, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल कैलिबर। तो सीए अकॉर्डिंग टू मी द डिग्री इज वेरी पुअरली डिजाइंड। उसका इक्विवेलेंट है सीपीए। ओके, बाई चांस सुना हो तो, एंड दिस इज नॉट अ सीपीए का वेबिनार, आई वुड से सीए के बदले सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, is a much better qualification, beautifully designed, covers the same thing, accounts, audit, taxation, regulation, but does it in a very, very efficient manner। मैंने मजा आ जाता है सीपीए का एग्जाम को प्रिपेयर करके। अगर मैं इस फील्ड में जाता आई वुड हैव फोकस्ड ऑन सीपीए। ठीक है, ओके, मैं सीपीए में फोकस करता, सीए में तो कोई हालत में फोकस नहीं करता। ग्लोबल कंपनीज का करूंगा ना, क्या इश्यू है? Why would I be auditing Indian companies? I'll audit global companies and Indian companies which are big. Anyways, they are following IFRS US GAAP. Understood? So I will be focusing on the bigger companies. I'll be focusing on global clients. I'll be working at the Morgan Stanleys for the purpose of discussing कि इलॉन मस्क का टैक्सेशन कैसे मैनेज करना है, उसका रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे मैनेज करना है। दैट इज व्हाट आई वुड फोकस ऑन। ठीक है, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि वाई, और या फिर इससे सॉफ्टर इज एसीसीए, इससे सॉफ्टर, सॉफ्टर मतलब सीपीए से थोड़ा सॉफ्टर हो जाएगा एसीसीए, दैट्स ऑल्सो गुड इनफ। तो दिस इज माई पर्सनल बिलीफ। एनीवेज, अब बात आ रहा है कि फाइनेंस इज नॉट इक्वल टू अकाउंट्स, फाइनेंस इज नॉट इक्वल टू ऑडिट, फाइनेंस इज नॉट इक्वल टू टैक्सेशन, फाइनेंस इज नॉट इक्वल टू रेगुलेशन। दैट इज नॉट व्हाट फाइनेंस इज, हिसाब किताब करना नहीं। फाइनेंस इज अबाउट markets. Finance is about markets. When we talk about markets, we are talking about equity markets, we are talking about bond market, we are talking about currency market, we are talking about commodity market। commodity market जो न्यूज आती रहती है एनडीटीवी सीएनबीसी में सुबह से रात तक, दैट न्यूज, इज इट अबाउट अकाउंटेंसी? टेल मी समथिंग, इज इट अबाउट अकाउंटेंसी कि कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे? क्या वो चल रहा है अपने सारे न्यूज़पेपर्स में, ईटी में, बिजनेस स्टैंडर्ड्स में? द न्यूज दैट वी कम अक्रॉस इज अबाउट इकोनॉमी, is about the global economy, is about the Indian economy, is about how the GDP growth rate in India is behaving, whether we are headed towards a recession,
The news is about the inflation, it's about unemployment, it is about how different sectors are performing, it is about how the stock market is performing, it's about the currencies performing, it's about geopolitical events. Okay, it is about all that. News ये सब के बारे में आप सुनते हो. Where do you study news about all those things? And therefore you are the best judge कि बाजार में क्या चल रहा है, कौन से कंपनी में क्या हुआ, राजेश एक्सपोर्ट्स में अगर कांड हुआ तो क्यों हुआ. ठीक है, तो विच कंपनीज, टीसीएस का रिजल्ट आया परसों, तो टीसीएस का रिजल्ट कैसा आया, आईटी सेक्टर क्यों ब्लीड कर रहा है. ठीक है, तो आने वाले टाइम पे इन्फोसिस का, एचसीएल टेक का कैसा रिजल्ट आने वाला है. एचसीएल ने $150 million का इन्वेस्टमेंट किया सर्वम एआई में. ओके, क्यों किया वो इन्वेस्टमेंट. 270 यानी मल्टीपल पे, रेवेन्यू मल्टीपल ऑफ 270 टाइम्स, वेर एज ओपन एआई एंड क्या बोलते हैं एंथ्रोपिक आर ट्रेडिंग एट 40 टाइम्स देयर रेवेन्यू. एंड द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एचसीएल टेक इन सर्वम एआई वाज 270 टाइम्स रेवेन्यू. इतना बड़ा वैल्यूएशन इंडियन एआई सेक्टर में क्यों हुआ. मतलब of course you may be aware of some of it, you may not be aware of some of it. Now this is the stuff which everybody likes to study. अगर मूवी हॉल गए, कल एक जन का मैसेज आया मेरे पास कि सर मैं मूवी देखने आया हूं, और मूवी देखने आया हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि सर पॉपकॉर्न के लाइन पे कितना बड़ा क्यू है. मैं देख रहा हूं कि जो मूवी चल रही है पीवीआर आइनॉक्स में, उसमें कितने मिनट का एड है. मैंने एकदम चेक किया है, 20 मिनट्स का एड है. क्यों? बिकॉज जो बंदा फाइनेंस में आ गया वो पीवीआर को एज अ बिजनेस देखेगा. पीवीआर का स्टॉक लिस्टेड है, पीवीआर का स्टॉक लिस्टेड है. पीवीआर कैसे रेवेन्यू कमा रहा है? पीवीआर रेवेन्यू कमा रहा है बाय वे ऑफ मूवी टिकट्स का सेल्स. कुछ सेल्स काउंटर पे जाके होता है, ज्यादातर सेल्स ऑनलाइन होता है. उन दोनों में इकोनॉमिक्स डिफरेंट है. उसके अलावा फूड एंड बेवरेज का सेल हो रहा है, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू है पीवीआर का. ठीक है, उसके अलावा पीवीआर कुछ मूवी को डायरेक्ट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचता है. तो वो रेवेन्यू मॉडल है पीवीआर का. खर्चा क्या है पीवीआर का? लीज रेंटल लग रहा है वगैरह वगैरह खर्चा. माने वी लुक एट एवरीथिंग एज अ बिजनेस. जैसे आप लोग सबसे पहले क्लोजली कोई बिजनेस को देखते हो ना, तो एजुकेशन बिजनेस देखते हो. यार कितने स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट 30,000 दे रहा है, सर लोग का खर्चा क्या है, हार्डली खर्चा है. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, मटेरियल खर्चा है, फैकल्टी खर्चा है. तो जैसे ही आप हर बिजनेस का धंधा देखते हो ना, बिजनेस, यू गेट टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. योर थॉट प्रोसेस चेंजेस. एंड लेट्स अंडरस्टैंड, आई एम अज्यूमिंग everybody is over here to make solid money. Is my assumption correct? Everybody is over here to make solid money, solid career, solid quality life. ये ट्रू है ना? अगर ये ट्रू नहीं है तो भाई वी आर, आई थिंक, नॉट ऑन द सेम पेज. वी आर नॉट ऑन द सेम पेज. डू नॉट फॉल ऑन द 1 लाख का ट्रैप. व्हाट इज द 1 लाख का ट्रैप? यू आर अवेयर? 1 लाख का ट्रैप मतलब पहले के जमाने में था कि काश 12 लाख का जॉब मिल जाए, घर पे 1 लाख पर मंथ आ जाए. आपको जॉब मिलेगा, आप सीए करेंगे आपको जॉब मिलेगा. ठीक है, 10-12 लाख का एड जॉब कहाँ मिलेगा? आईटीसी में जॉब मिलेगा आपको, आईटीसी में. ठीक है, और आईटीसी में जॉब मिलेगा, परिवार वाले बोलेंगे आईटीसी में छोरे को जॉब लागू है. ठीक है, एंड वो जाके आईटीसी में जाएगा, क्या खुश होके जाएगा. आईटीसी के अंदर ही अंदर जाके, अंदर ही अंदर जाके एक रूम में जाके बैठेगा और वहां पे आईटीसी का अकाउंटेंसी करेगा. ओके, उन लोग का रेगुलेशन करेगा, जीएसटी ठीक से फाइल हो गया है ना, चेक करेगा. बैंक वाउचर जो है वो चेक करेगा. दिस इज द जॉब. 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 6 महीने बाद बेचारे का पूरा सीए करने का भूत उतर जाएगा और सारा आईटीसी उतर जाएगा. समझ गए? वो बिल्डिंग, जो सुंदर सी बिल्डिंग है, वो कोई काम की नहीं रहेगी. ओके, एंड परिवार वाले भी देखेंगे कि बच्चा क्या करने को सोचा था और क्या कर रहा है. क्या बोलूं मैं तुम्हें. ठीक है ना. एनीवेज, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सीपीए सीएफए प्रोग्राम, when we talk about the CFA program, I'm sure everybody knows the full form. फिर भी can I have the full form please? CFA का full form क्या है? Sorry for asking. CFA का full form क्या है? सीए का फुल फॉर्म था चार्टर्ड अकाउंटेंट. सीएफए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. तो आप स्ट्रेट अवे देखो, सीएफए में यू हैव फाइनेंशियल, which is not there in CA, and you have analyst, not accountant, analyst. Okay, not accountant. If you go first principles thinking, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा किस जॉब में क्या है. सीए वाला हिसाब किताब बनाएगा कंपनीज का, पीवीआर का डेबिट क्रेडिट एंट्री करेगा. सीएफए वाला पीवीआर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका ट्रेंड देखेगा, उनका ड्राइवर्स देखेगा. ठीक है, एंड फोरकास्ट करेगा कि पीवीआर कैसा परफॉर्म करने वाली है, उसका अर्निंग्स कैसा होने वाला है, क्या उसका स्टॉक बाई करना चाहिए क्या, अगर 5 साल का होल्डिंग पीरियड है तो. सीएफए वाले का
मेन पर्पस हो गया कंपनीज को देखना और उनमें वैल्यू खोजना। विच कंपनीज आर गोइंग टू क्रिएट वैल्यू, विच sectors are going to create value, which economies are going to create value. When you do a CA, you either think about opening your own firm, मैं एक CA का फर्म खोलूंगा और लोगों का ऑडिट टैक्सेशन ये सब करूंगा, विच इज वेरी गुड। ऑफकोर्स टाइम लगता है, बहुत कंपटीशन है, वेरी क्या बोलते हैं इनकम अर्निंग। जो सीए फर्म खोल के अच्छे से चलाता है काफी पैसा कमाता है और कमा सकता है। सीएफए वाला जो है, ही लुक्स टू बिकम अ फंड मैनेजर, a chief investment officer, CIO. So gone are the days when we talk about the CFO, chief financial officer. Now is the day when we talk about the CIO, the chief investment officer of Morgan Stanley, the chief investment officer of Kotak AMC, the chief investment officer of Motilal AMC, the chief investment officer of JP Morgan. Okay, and what a job it is. Oh God, I can't say it will rain. Okay, money will rain. Understood? So that is the type of thing that happens. Of course, it is hard. It takes its own time. It cannot happen in a couple of years. You have to give it the place. So CFA is the true finance degree which takes you into the type of finance which you will love, where money reigns, where money doesn't just stumble and come into the 1 lakh trap. But sir, मैंने तो सुना है मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो सीएफए किए, उनका भी पहला जॉब 10 12 15 लाख का लगा था। हाँ करेक्ट है, स्टार्टिंग वैसे ही होती है। और जिन लोग को उससे बेटर स्टार्टिंग करनी है, वो लोग कॉलेज के साथ साथ बहुत सॉलिड इंटर्नशिप करते हैं, जिससे कि जब तक सीएफए कर ले तो सॉलिड इंटर्नशिप आ गई, उनको सारा ऑपरेशंस पता और फर्स्ट पैकेज 18 के ऊपर का लगे। तो उसके लिए करना पड़ेगा ना, वन हैज टू डिफरेंशिएट वन सेल्फ। ठीक है ना, एंड वन हैज टू डू सीएफए विद डेप्थ, नॉट जस्ट टू पास द एग्जाम, कि आपको प्रैक्टिकली सब कुछ आता है जो सीएफए प्रोग्राम सिखाना चाह रहे हैं। ओके, मे बी देयर विल बी से 5,000 CFAs coming out every year in India. 5,000, the number can be wrong. 5,000, वो 5,000 में से there will be 500 CFAs जिनमें डेप्थ है, बाकी 4,500 मीडियोक्रिटी। तो अगर सीएफए करो तो डेप्थ से करना, केवल एग्जाम पास के लिए मत करना, उसके अंदर जो जो कंटेंट है उसको मास्टर करना। इसीलिए तो ये चीज देखते देखते बार बार मैंने अभी फेब में, विच वॉज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, एनालिस्ट स्टैक लॉन्च किया सीएफए के साथ, कि सीएफए आपको एकेडमिकली सिखा रहा है, ओके, प्लस ग्लोबल प्रोग्राम है। एनालिस्ट स्टैक वही चीज आपको प्रैक्टिकली करवा रहा है कि रियल लाइफ में कैसे कंपनीज को रिसर्च करेंगे। At the time when I'm taking this session, a wonderful session is going on for the analyst track, which is earning season. Earning season चालू हुआ ना अभी, टीसीएस का रिजल्ट आया। तो अर्निंग सीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कैसे कंपनीज का अर्निंग्स का प्रीव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा का बड़े सेशन चल रहा है अभी एनालिस्ट ट्रैक का। एनीवेज, तो ये सीएफए की बात कर रहे थे, एनालिस्ट और अकाउंटेंट में क्या डिफरेंस है आपको वर्ड से पता चल रहा है। एंड यहां फाइनेंस है, सीए में फाइनेंस नहीं है। ठीक है, सिंस अपने कंट्री में सीएफए का इक्विवेलेंट डिग्री नहीं है, विच इज अनफॉर्चुनेट। आई एम अ हाईली पेट्रियोटिक पर्सन। आई विश कि अपने को सीएफए नहीं करना पड़ता, बिलीव मी, बिकॉज व्हाई शुड वी पे दोस डॉलर्स टू यूएस। ओके, रूपी ऑलरेडी वीक है। एज अ पेट्रियोटिक पर्सन वी शुड नॉट बी डूइंग फॉरेन डिग्रीज, बिलीव मी। एज अ पेट्रियोटिक पर्सन आई शुड नॉट बी सेंडिंग माई डॉटर टू कॉर्नल। यू नो द फीस, कल सुबह पे किया फीस $51,000 फॉर 1 सेमेस्टर। $51,000 for 1 semester I paid for Cornell, 1 semester. Am I loving it? No, I am not loving it. But क्या करें, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे किया ही नहीं है ये लोग ने, इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन नहीं किया। दे आर टीचिंग फॉर द मासेस, दे आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट द क्लासेस आउट ऑफ द मासेस। एंड जो लोग ये समझ जाते हैं, जो पेरेंट्स समझ जाते हैं, दे आर क्लियर कट डिफरेंशिएटर्स। वो लोग शुरू से ही ग्लोबल टैग लगा देते हैं। नाउ आई से दिस विद अ लॉट ऑफ पेट्रियोटिज्म इन माय हार्ट, दैट सीएफए जैसा डिग्री इंडिया में भी होना चाहिए था। सीए फॉर रेगुलेशंस एंड सीएफए टाइप डिग्री फॉर द पर्पस ऑफ द अदर साइड। काश ये होता, और सीएफए का जो कॉस्ट होता ना, दैट वुड हैव बीन 1/10, बिलीव मी। 10% या 20% रेट पे सीएफए हो जाता, बट नहीं है तो नहीं। ओके, व्हाई वुड आई हैव टू स्पेंड around 1.25 crores paying to Cornell University for 1 year for my daughter's education? It should have happened in India itself. इंडिया में 20 लाख 15 लाख पे हो जाना चाहिए था। एंड ये चीज ट्राई कर रहे हैं अशोका, ये चीज ट्राई कर रहे हैं मास्टर्स यूनियन। Okay, and they are considerably significantly better as compared to what the elite colleges are doing, and I have seen it closely. I say this
not on account of hearsay. I say this on account of seeing the curriculum, seeing the pedigree of the teachers which are teaching. Believe me. समझ गए? So, CFA program आज के डेट पे for anybody who wants a great career, who wants to mint money, who wants to rain money in life, okay, who doesn't want boredom, who doesn't want to ratify and produce, who wants real AI stuff, can you beat it? सीए में कोई पूछेगा सर सीए में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? एआई आ गया है क्या सीए के सिलेबस में? आंसर क्या है बताओ? सीए में क्या एआई आ गया है क्या? सर सीए में क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? सीए में क्या मशीन लर्निंग बिग डेटा है क्या? बताओ। सीए में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है क्या एग्जाम्स में? सीए में क्या बिग डेटा और क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग है क्या? और सीए में क्या सर ये सब चीज है क्या? बताओ, है कि नहीं है? आप लोग सबका आंसर रॉन्ग है, सबने बोला है नो, आंसर इज यस। सीए में एआई आ गया, सीए में बिग डेटा आ गया, सीए में मशीन लर्निंग आ गया, ऐसा हमें सुनाई देता है। I have met the parents of students who have come to me and their parents are CAs and they said आजकल तो इंस्टीट्यूट ने ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब सिलेबस में डाल दी है, आ गया है। और आया क्या है सुनना प्लीज, रजत रुद्राक्ष, आया क्या है? क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिग डेटा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मशीन लर्निंग, compare machine learning with big data. What are the advantages of knowing AI? This is what CA में आया है। सबको याद नहीं आ रहा अपने टाइम में, जो अपने क्लास 10 तक 12 तक पढ़ते थे और जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स में, explain the logic for the law of demand. When price goes up, quantity demanded goes down. Explain, 14 marks. मैं सफर किया हूं क्लास 11 12 में। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्यों गिरेगा, इसको 14 नंबर का मेरे को एक्सप्लेन करना है भाई। क्या समझाऊं, क्या समझाऊं? इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डीएमयू। जैसे जैसे अपने को और क्वांटिटी मिलता है किसी प्रोडक्ट का, उसका एमयू कम होते जाता है एंड देयरफॉर वी वांट टू पे लेस because the price that we wish to pay is based on the marginal utility we derive from something, isn't it? What is there to explain? Why are you teaching us shitty stuff and wasting our precious time? I have been exploited to the extent of infinity in class 11 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड एजुकेशन। 10 तक संभला हुआ था, आईसीएससी का भी कुछ हद तक ठीक था, बट 11 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड, ओ गॉड व्हाट इज बिजनेस। 14 मार्क्स, नॉर्मल लुएंस का डेफिनेशन, रिचर्ड ओवेंस का डेफिनेशन, पता नहीं किसका किसका डेफिनेशन, एंड बच्चे उसी में प्रतिस्पर्धा समझ रहे हैं। एंड ये सेम चीज कॉलेज में हो रहा है, कॉलेज में बैग टांग के निकल जा रहे हैं कि क्या हीरो बनने जा रहा है। भाई समझो चीजों को, लुक एट द एंटायर लैंडस्केप दूर से एंड अंडरस्टैंड। आर यू गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द भीड़ और आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ? इफ यू वॉन्ट टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ यू गॉट टू डू CFA. And if somebody is from an engineering background, somebody is from maths background, somebody is from a क्या बोलते हैं arts background, somebody is from a history honors background and literature honors background, these are the people who have ultimately globally become the greatest fund managers, not the ones who did debit credit. Believe me. मैंने कितना वो हो जाता है जब सोचते हैं कि सर मैं तो कॉमर्स से नहीं हूं, मेरे को तो डेबिट क्रेडिट आता नहीं है, तो क्या मैं सीए कर सकता हूं क्या? रेड कार्पेट ट्रीटमेंट आपके लिए, बिकॉज यू ब्रिंग अ बेटर पर्सपेक्टिव, यू ब्रिंग अ बेटर पर्सपेक्टिव। सीएफए का प्रोग्राम इज अबाउट धंधा को समझना, धंधे को, और धंधे को समझने में कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, धंधे को समझने में कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। सो सीएफए प्रोग्राम करके सर विल गेट इनटू व्हाट इज द एंड गोल। सॉरी एक मिनट, आई थिंक कोई भी प्रोग्राम को जब डिसाइड करते हैं ना, तो सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए व्हाट इज द एंड गोल। डिस्कस कर ले एंड गोल। तो एंड गोल कुड बी you want to get into investment banking. End goal could be you want to get into consultancy. End goal could be you want to get into wealth management. End goal could be you want to get into private equity. End goal could be you want to get into public market funds.
public market funds. So end goal is at the end of the day investment management. ओके, म्यूचुअल फंड सही है का? तुम प्रोडक्ट नहीं बेचेगा सर, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं कि मैं आपको एडवाइस करूंगा? नहीं। म्यूचुअल फंड सही है का तुम फंड मैनेजर बनेगा। यू आर द वन मैनेजिंग 20,000 30,000 40,000 करोड़ कॉर्पस। ओके, जो लोग जमा कर रहे हो उसको आप मैनेज कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कहां लगाना है, एंड यू आर अर्निंग अ 1% मैनेजमेंट फी, 1% ऑफ 40,000 plus a 15% incentive fee. That means if you earn more than 6 8%, you get 20% or 15% of the extra profit. Okay, management fee plus incentive fee, and that reigns, believe me. You are able to manage your own portfolio. Okay, मतलब it is such a beautiful life. Monday to Friday, hectic life. मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूज आ रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपना सेम्बलेंस कैसे होल्ड करना है, ये रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट आ रही है, मजा आ जाता है। इट्स द लाइफ। ओके, द लाइफ ऑफ अ फंड मैनेजर इज ब्यूटिफुल। एट द सेम टाइम देयर आर हॉलीडेज, सैटरडे संडे, markets are closed, your life is sanity, noise is less, you are able to spend time with your family, the quality of life is beautiful, you take vacations। मतलब आई लव द लाइफ ऑफ फंड मैनेजर, बिलीव मी। क्या बोलूं मैं? इफ यू सॉ द सीरीज बिलियंस, किसने किसने देखा था? बिलियंस किसने किसने देखा था? बिलियंस किसने किसने देखा था? हु ऑल सॉ द बिलियंस? बिलियंस एक वेब सीरीज था ना, एक्सेल रॉड, बॉबी एक्सेल रॉड, आदित्य ने देखा था। बिलियंस का ऐसे ही एक दो एपिसोड देखना। ओके, और मजा आ जाएगा। वो जो क्या बोलते हैं, वो केमिकल सिक्रीट होता है, कौन सा? एड्रेनल। ओके, वो सिक्रीट होगा एंड यू विल फील लाइक यही मेरे को बनना है। दैट्स द टाइप ऑफ स्टफ विच इज देयर इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड। ठीक है, यू टॉक अबाउट प्राइवेट इक्विटी एज इन बेन कैपिटल, यू टॉक अबाउट कंसल्टेंसी मैकेंसी बीसीजी, you talk about investment banking, JP Morgan, Morgan Stanley, you talk about investment management, the family offices, okay, the offices of rare enterprises, 90,000 crore ka corpus, it's all there in the CFA program. Equity markets, bond market, currency market, commodity market, alternate investment, real estate, cryptocurrency, Bitcoin, digital assets, okay, what not, whatever you really want to get into, AI, ML, big data, everything's there in CFA। या डोपोमिन, सुमन और बोल रहे सर उसको डोपोमिन बोलते हैं, जो बोला ना डोपोमिन सिक्रीट होता है, तो डोपोमिन का आपको फीलिंग आएगा। इट्स अ वंडरफुल स्टफ। द सीएफए प्रोग्राम टेक्स यू इनटू ऑल दिस एरियाज। It takes you to the best of companies. It makes you an entrepreneur. If you are having a family business, okay, CFA is perfectly appropriate for you. If you are a youngster coming out of class 12 and having meager means, CFA is the best program for you। एंड गोल के बाद हाउ टफ, सेकेंड पॉइंट आता है, हाउ टफ सीएफए कितना टफ है, हाउ टफ। तो हाउ टफ में तीन चार क्राइटेरिया है। नंबर वन, पास परसेंटेज। तो पास परसेंटेज सीएफए का रफली अराउंड 35 to 50% है, अलग अलग लेवल्स का। 35 to 50% इज द पास रेट। 35 से नीचे पास परसेंटेज होता नहीं है। इसका मतलब 100 जन बैठते एग्जाम में, कम से कम 35 जन पास करते हैं। कई बार पास परसेंटेज 47 48 52 भी रहा हुआ है। आई हैव रिटन अ ब्रॉड रेंज। दिस इज द पास परसेंटेज, दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ एंड वेरीफिएबल, आप चेक कर लेना प्लीज। दिस इज द पास परसेंटेज। पास परसेंटेज इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मैथ्स। सीएफए में है क्या? नहीं है, मैथ्स इज नॉट देयर। देर इज नो मैथ इन सीएफए। Okay, there is no math in CFA, no APJP, no permutation combination, no algebra, no derivative, no calculus, no limits, no derivative, no integration, no tan theta, sin theta, cos theta, कुछ नहीं है सर। शुरू में तो होगा, नहीं है सीए फाउंडेशन में, सीएफए में नहीं है। देर इज नो मैथ्स, देर इज स्टैट्स, देर इज एप्लीकेटिव स्टैट्स। देर इज एप्लीकेटिव स्टैट्स ना, वो चोमू वाला स्टैट्स नहीं है। चोमू वाला स्टैट्स कौन सा होता है बता रहा हूं। एक तो वो वाला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हिस्टोग्राम, बाप रे बाप क्या करवा रहा है। और या फिर वो वाला, हमने दो कॉइन टॉस किया, क्या चांस है दोनों में हेड आएगा। हमने पैक ऑफ कार्ड्स में यू रैंडमली पिकअप, क्या चांस है स्पेड आएगा। भाई पागल हो गए हो क्या? हमें सट्टा खिला रहे हो क्या? वाई डू दे टीच दैट स्टफ? Why do they don't come to applicative stuff?
एक एप्लीकेटिव स्टफ का मतलब हुआ कि नेक्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा? विल इट बी मोर देन 7%? विल इट बी बिटवीन 6 to 7%? विल इट बी लेस देन 6%? ओके, इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है? रिलायंस का ईपीएस जो इस क्वार्टर में रिपोर्ट होने वाला है, वो रिलायंस का ईपीएस लास्ट क्वार्टर से 10% ज्यादा रिपोर्ट होगा या 10% कम रिपोर्ट होगा? इसके ऊपर पूरा बाजार डिपेंडेंट है। वाई डोंट दे टीच अस प्रैक्टिकल स्टफ भाई? वाई डू दे टीच अस स्टुपिडिटी? ओके, वी डोंट आई डोंट अंडरस्टैंड, पता नहीं कहां से ब्रेन्स आ जाता है। कहीं तो दुनिया चेंज होगी। ये तो वही हो गया कि तुम माने उबर वगैरह सबको छोड़ के तुम बुलक कार्ट में चलोगे कि सर मजा आता है, बुलक कार्ट में पॉल्यूशन नहीं होता है, मेरे को तो बैलगाड़ी में सवारी करना है। तो बैलगाड़ी में अपने को सवार किया जा रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ओके, और क्या बैलगाड़ी में सवार हुए हुए लोग चैंपियन नहीं होते? कुछ कुछ होते हैं चैंपियन, बट कब पहुंचेंगे अपने मंजिल पे? बीच में ही रुक जाएंगे। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, दैट्स द ट्रू रियलिटी। तो पास परसेंटेज 35 to 50% है, मैथ्स नहीं है, एप्लीकेटिव स्टैट्स है, एप्लीकेटिव स्टैट्स है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट हाउ टफ द सीएफए प्रोग्राम इज। तो पास परसेंटेज, मैथ्स, एप्लीकेटिव स्टैट्स, दैट इज देयर इन सीएफए। सीएफए में अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे बर्बाद कर रखा है बताए? रेशियोस, करंट रेशियो सीए बाई सीएल, रिटर्न ऑन इक्विटी, पैट बाई नेटवर्थ, आदमी रटता रहता है, एक रेशियो का लिस्ट है, करंट एसेट सीए बाई सीएल, क्विक रेशियो सीए माइनस इन्वेंट्री बाई सीएल, आरओई पैट बाई नेटवर्थ। ठीक है, तो इस तरह से लोग रटते रहते हैं रेशियोज को भाई। प्रे मैंने एनालिसिस का मतलब क्या रेशियो होता है क्या? और आपको रटना पड़ता है कि व्हेन यू से रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इक्विटी फंड्स के ऊपर रिटर्न। ठीक है, इक्विटी फंड्स के ऊपर रिटर्न, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। आई डोंट नो व्हाट डू दे डू। सो सीएफए में फोकस क्या चीज पे है? सीएफए में फोकस है ऑन इक्विटी मार्केट्स, ऑन बॉन्ड मार्केट, ऑन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में सब आ गया, मतलब आपका कमोडिटी, करेंसी, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, आर्ट ऑब्जेक्ट्स, ब्लॉकचेन, ये सब आ गया। और इन सबको कंबाइन करते हैं तो इट बिकम्स अ पोर्टफोलियो। सो वी हैव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसका रिस्क मैनेज होता है थ्रू डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव से उसका रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो डेरिवेटिव्स। तो दीज आर द करिकुलम इन द सीएफए। सीएफए में ये करिकुलम है। इन सब के लिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए, तो इकोनॉमिक्स वंस अगेन एप्लीकेटिव इकोनॉमिक्स। कोई पूछेगा ना सर सीएफए का करिकुलम क्या है? इट इज इकोनॉमिक्स, इट इज एफएसए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इट इज क्यूएम क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब स्टैट्स, एंड ऑल दिस अप्लाइड टू दिस, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन एथिक्स। एथिक्स माने आप दूसरे का पैसा मैनेज करने वाले हो, यू गॉट टू डू इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पर्सन, नॉट फॉर योर ओन बेनिफिट। दूसरे का पैसा अपने फायदे के लिए नहीं, उसके फायदे के अनुसार यूज करना है। खैर वो ज्ञान देने से फायदा नहीं है अभी। तो दैट इज अबाउट हाउ टफ इट इज। Okay, it is not tough at all. Yeah, how tough it is, let me tell you. You join a gym. There is a brilliant trainer in the gym. वो ट्रेनर आपका क्या से क्या कर देगा, बिलीव मी, वो आपको एकदम ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर आपका वेट अभी 120 केजी है, वो आपको 70 केजी पे ला जाएगा, आपका मसल्स आ जाएगा, यू विल बी सो कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ, एवरीथिंग कैन बी डन। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू रेगुलरली गो टू द जिम। यू हैव टू रेगुलरली गो टू द जिम। क्या ऐसा ट्रेनर है दुनिया में जो आपका ये सब कुछ कर सकता है विदाउट योर गोइंग टू द जिम? पॉसिबल नहीं है ना। सो व्हाट इज द चैलेंज सीएफए में? मेरे से क्लास करने से मैं अपने आप को ट्रेनर डिफाइन कर रहा था। आपको क्लास करना पड़ेगा ना, आपको मेरे को समय देना पड़ेगा। एंड मैं भागता नहीं हूं, मैं भागता नहीं हूं, मैं स्लो जाता हूं, खोल खोल के समझाता हूं हर चीज को। और मैंने यू नो माई समथिंग, मेरे क्लास में एक क्लास 12 का पास किया हुआ स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, एक आईआईटीएन बैठा हुआ है। वो क्लास 12 पास किया हुआ जो स्टूडेंट है, उसकी मम्मी बैठी हुई है, वो भी क्लास कर रही है सीएफए का, बिकॉज शी इज अ वेल्थ मैनेजर। ठीक है, और ये सब को जब पढ़ाता हूं और सारे के सारे सेटिस्फाइड, बिकॉज आई टीच इट इन सच अ प्रैक्टिकल मैनर, एग्जाम्पल ले लेके ये करिकुलम भी कवर हो जाता है और एट द सेम टाइम अप्लाई करते जाते हैं। हर क्लास के बाद स्टूडेंट्स लोग लिंक्डइन में रिसर्च डालते हैं अपना, बिकॉज
आई गिव देम समथिंग और दी अदर विच इज रिसर्चेबल। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा जो रिसर्च कर सकते हैं, वो लोग लिंक्डइन में डालते अपना छाप प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट अबाउट नोइंग, द वर्ल्ड इज अबाउट शोइंग व्हाट यू नो। यू कैन नॉट जस्ट नो, यू हैव टू शो व्हाट यू नो। ठीक है ना? तो वो सारे सेशंस भी होते रहते हैं, एआई का इम्प्लीकेशंस एंड ऑल दैट। तो हाउ टफ इट इज का ये है, बिलीव मी आई गिव यू 100% गारंटी ऑफ पासिंग, प्रोवाइडेड यू गिव मी टाइम। तुम मुझे समय दो, तुम क्लासेस करो, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है ना? एनीवेज, सो आई मीन टू से दैट 100% चांस ऑफ पास होने का, बिलीव मी। ठीक है? 100% चांस ऑफ पासिंग इफ यू attend classes and do the mocks and do the questions। सर इसके लिए हाउ मेनी आवर्स अ डे पढ़ना पड़ेगा? हाउ मेनी आवर्स अ डे? तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, टाइम। टाइम एंड कॉस्ट। टाइम, पहले टाइम पे आते हैं। तो सीएफए में 3 लेवल्स है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है या जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, उस स्टूडेंट को वी एडवाइज अराउंड 9 months फॉर लेवल 1। इट कुड बी 6 months फॉर somebody, इट कुड बी 12 months, बट 9 months। लेवल 2 वी एडवाइज अराउंड once again 9 months। लेवल 3 6 months। So this is my advice for students who are in the final year of graduation or who have done their graduation। This thing can be a bit plus minus, हो सकता है प्लस माइनस। ठीक है? दिस कैन बी अ बिट प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन, सपोज कोई पर्सन बहुत तेजी से कर रहा है, फुल टाइम स्टूडेंट है, सीए है, और पूरा डिवोट कर रहा है, तो इन दैट केस लेवल 1 को 9 months के बजाय 6 months में कर सकता है। दिस इज फॉर दोज हु आर, लेट मी राइट, ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं। और जो लोग क्लास 12 पास्ड आउट है, जो लोग क्लास 12 पास्ड आउट है, उनका नंबर लाइन अलग है। क्लास 12 पास्ड आउट या जो सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में है, उनके लिए एडवाइस है लेवल 1 शुड बी 15 months। लेवल 1 15 months। लेवल 2 9 months इज ओके। लेवल 3 6 months इज ओके। तो यू कैन काउंट कितना टाइम लगता है सीएफए करने में। ऊपर में 9 + 9 18 months + 6 24 months, यानी 2 years हो गया। और इन बच्चों को 15 + 9 24 months + 6 months 2.5 3 years हो गया। 3 years लिख देते हैं। Of course, level 3 can only be given after the third year of graduation. Level 3 can only be given after the third year of graduation। थर्ड ईयर के बाद लेवल 3। सब मेरा 4 साल का ग्रेजुएशन, डजेंट मैटर। थर्ड ईयर इज कंसिडर्ड टू बी एलिजिबल। तो थर्ड ईयर, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? जब आपका थर्ड ईयर है ग्रेजुएशन का, उसके 23 months पहले, आई एम जस्ट मार्किंग इट जस्ट टू शो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंफ्यूजन नहीं हो जाए। इवन इफ यू आर डूइंग 4 years ग्रेजुएशन, जो थर्ड ईयर ग्रेजुएशन है, उसका 23 months पहले, 23 months पहले यू कैन सिट फॉर L1 एग्जाम। थर्ड ईयर जो है, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन का, उसके 23 months पहले यू कैन सिट फॉर L1 एग्जाम। तो इसका मतलब जो भी क्लास 12 पास किया है, वो सीएफए का तैयारी स्टार्ट कर दे। 15 months अगर पढ़े तो वो अगस्त में एग्जाम दे सकता है। यानी अभी जहां खड़े हैं, कमिंग नेक्स्ट ईयर के अगस्त में यू कैन सिट फॉर लेवल 1। जो क्लास 12 पास किया है, एलिजिबल है, अलाउड है। ठीक है? बिकॉज August 27 फॉल्स विद इन 23 months ऑफ योर थर्ड ईयर ग्रेजुएशन। ठीक है? ओके। कोई पर्सन अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है और सीए इंटर कर लिया है, तो वो भी क्वालिफाई होता है सीएफए में एग्जाम देने के लिए। कोई पर्सन ग्रेजुएशन नहीं किया है और क्या बोलते हैं, सीए इंटर किया है, तो इन दैट केस अलाउड है, सीएफए का एग्जाम बैठ सकता है, एलिजिबिलिटी इज देयर। ग्रेजुएशन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। कोई पर्सन ग्रेजुएशन नहीं किया है, सीए भी नहीं किया है, उसके पास वर्क एक्स है, ओके, तो इन दैट केस वो सीएफए का एग्जाम में बैठ सकता है। तो ये सब माइन्यूशियर्स तो हमारे काउंसलर्स हैंडल कर लेंगे। आई शुडंट गो टू मच इनटू दैट। मेरे को हैंडल था कि सर सीएफए में कितना टाइम लगेगा। तो अगर कोई ग्रेजुएशन हो गया और फोकस्ड है तो 2 years, मे बी 2.5। और कोई क्लास 12 पास किया है तो 3 3.5 years सीएफए में लगेगा। अब सर कॉस्ट क्या है सीएफए में? कॉस्ट, सीएफए के ईच लेवल
का कॉस्ट राउंड अबाउट $1,400 है। तो $1,400 इंटू थ्री, ओके, $1,400 इंटू थ्री इज इक्वल टू वॉट? $4,200 इंटू 90। $4,200 इंटू 90 कितना आ रहा है सुमन ओवर? व्हाट इज द कैलकुलेशन? $4,200 इंटू 90, ऑफ कोर्स यू कैन टेक 95, यू कैन टेक 100। तो अपने एक बार अप्रॉक्स लिख दे, ₹4 लाख। ₹4 लाख, ओके, मैंने ₹4 लाख लिख दिया है, जो कि आपका लगेगा। और प्लस ट्यूशन फीस, जो ट्यूशन फीस अगर आप लेते हो तो दैट वुड बी रफली अराउंड अराउंड 1,10,000। ठीक है, अराउंड 1,10,000 का ट्यूशन फीस तीनों लेवल का। टोटल कॉस्ट इज राउंड अबाउट 5 लाख स्प्रेड ओवर द इंटायर टेन्योर। पूरे सीएफए का कॉस्ट 5 लाख लगने वाला है। इसमें देर इज अ स्कोप ऑफ स्कॉलरशिप, देर इज अ स्कोप ऑफ स्कॉलरशिप। अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो दिस 1,400 रिड्यूसेस फिनोमिनली टू अराउंड आई थिंक $350। अब तो कॉस्ट एकदम रिड्यूस हो गया। अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो केवल $350 1400 के बजाय, तो इट रियली रिड्यूसेस। स्कॉलरशिप मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? स्कॉलरशिप मिलने का प्रोबेबिलिटी, स्कॉलरशिप इज नीड बेस्ड। स्कॉलरशिप मिलने का प्रोबेबिलिटी, स्कॉलरशिप मिलने का प्रोबेबिलिटी इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप इज अराउंड 15%, 15। एंड आई एम टेलिंग यू 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स। आर्यन बोला सर जीएसटी भी लगता है, करेक्ट करेक्ट, तो प्लस जीएसटी, इसमें प्लस जीएसटी, थैंक यू आर्यन, जीएसटी भी लगता है, करेक्ट, तो प्लस जीएसटी। या आई वाज सेइंग समथिंग, स्कॉलरशिप का प्रोबेबिलिटी 15%, बट 80% of the students who receive scholarship, 80% of the students who get scholarship waste it. Very bad. तो जो बोलते हैं ना, भगवान काश मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाए, जिसको स्कॉलरशिप मिल गया, जिसको स्कॉलरशिप मिल गया वो बंदा एग्जाम में बैठेगा ही नहीं। समझ गए? ये जीवन का सारांश है। ठीक है, जिसको स्कॉलरशिप मिल गया वो एग्जाम में बैठेगा ही नहीं। बिलीव मी, दिस इज द स्टेटस। बिकॉज वो जो, वो चाहिए ना रोज जिम जाने का, रोज जिम में जाने का जो सिंसियरिटी चाहिए, दैट सिंसियरिटी इज नॉट देयर। वो सिंसियरिटी आता है पैसा दे के, वो सिंसियरिटी आता है पैसा दे के। मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? वो सिंसियरिटी आता है पैसा दे के। मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो आई हैव सीन इट, जिनको स्कॉलरशिप मिल जाता है वो लोग नहीं पढ़ते, दे आर नॉट एबल टू, बिकॉज उनमें वो सिंसियरिटी नहीं आता। आई हैव सीन इट थ्रू थ्रू, मैंने देख लिया। तो क्या स्कॉलरशिप क्या रहे बोलूं? अभी एआई के जमाने में, आई एम क्लियर, हमने जो स्कॉलरशिप कंडक्ट किया तो उस पर इतना कांड हुआ। एक ही तरह का स्कॉलरशिप होना चाहिए, या तो फिजिकली बुलाओ सबको और स्कॉलरशिप कराओ, ठीक है, अगर कैलिबर चेक करना है। ऑनलाइन तो नहीं पॉसिबल है। और या फिर लकी ड्रॉ करो स्कॉलरशिप में, ओके। तो सीएफए इंस्टीट्यूट हमेशा लकी ड्रॉ वाला स्कॉलरशिप करता है। हम लोग थोड़े ज्यादा हरिश्चंद्र थे, एंड वी थॉट अबाउट डूइंग द स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन। नेवर वर्क्स, अंडरस्टूड, बिग लेसन। स्कॉलरशिप अगर करेंगे फ्यूचर में तो इट विल बी फिजिकल। कैलकाटा में एक दिन होगा, बॉम्बे में एक दिन होगा, अलग अलग जगह, जब लोग एक एक साल में करते हैं, तो जिससे कोई झमेला ही नहीं रहेगा, सामने सामने एवरीथिंग। ठीक है, और हर सिटी में विल कीप वन स्कॉलरशिप, एंड आवर स्कॉलरशिप अमाउंट इज मैसिव। आई थिंक इट वाज अराउंड 10 lakhs, 5 lakh, 3 lakh, वट एवर द अमाउंट था, मेरे को याद नहीं आ रहा है जो था, बट बहुत ही कांड हुआ था यार। कितना डर्टीनेस बाजार में हो सकता है, ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया, even though with genuine intentions. Anyways, how does it matter? Manohar Diora is saying that, sir, please discuss about CA plus CFA. I'll discuss. Let me see whether I've covered everything. सीएफए में 3 लेवल्स है, सीएफए में क्या टॉपिक्स है, सीएफए का पास परसेंटेज क्या है, सीएफए का कॉस्ट क्या है, ठीक है। ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया। सीएफए का एंड गोल क्या है, सीएफए से कहाँ कहाँ मैंने क्या करियर बन सकता है, ठीक है। सीए सीएफए में डिफरेंस क्या है, वो सारा का सारा मैंने डिस्कस कर लिया।
अब बात आती है सर सीए प्लस सीएफए। तो बॉम्बे में तो देर इज अ ह्यूज कल्चर कि सीए के साथ सीएफए को ऐड करने का, बॉम्बे में। और बहुत जन सीए से परेशान है, तो आजकल कल्चर हो गया है सीएफए प्लस एफआरएम। बिफोर आई स्पीक अबाउट दिस सीए प्लस सीएफए या सीएफए प्लस एफआरएम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर जन जो इंटरेस्टेड है सॉलिड करियर के लिए, उसको एनालिस्ट स्टैक जरूर करना चाहिए। बिकॉज अगर आपको रियल लाइफ में कंपनीज को खोलना नहीं आता है, तो जब आप बैठोगे इंटरव्यू में सीए सीएफए के बेसिस पे इंटरव्यू टेबल पे पहुंच जाओगे, क्रैक करने में डिफिकल्टी होगा। बिकॉज एआई कैन डू एवरीथिंग नाउ विच juniors were able to do. So they will not hire. On the basis of your CA, you are on the interview table. उसके बाद you have to speak about companies and industries. You have to show that you know. And if you think that सर मैं प्रिपेयर करके चल जाऊंगा, खोल देगा वो। Analyst track is the solution to that. ठीक है, believe me. Anyways, CA plus CFA is a great combination. अगर कोई पर्सन क्लास 12 पास किया है और वो CA CFA दोनों ज्वाइन करता है, क्लास 12 पास आउट, और वो सीए प्लस सीएफए दोनों ज्वाइन करता है, तो मेरा एडवाइस होगा गो स्लो, स्टैगर इट आउट। जब सीए का एग्जाम है तो सीएफए का एग्जाम मत दो, जब सीएफए का एग्जाम है तो सीए का एग्जाम मत दो। ठीक है, ऑन द होल तुम्हारा 5 इयर्स में दोनों कंप्लीट हो जाएगा, 5 इयर्स बोथ कंप्लीट। सर क्या सीए प्लस सीएफए इज बेटर देन ओनली सीए? 100%। सर क्या सीए प्लस सीएफए इज बेटर देन ओनली सीएफए? ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट। बट ऐसे तो कितना प्लस प्लस करते रहेंगे, सीए कर लो, सीएफए कर लो, एसीसीए कर लो, एफआरएम कर लो, मेरे जैसे डिग्री पे डिग्री भर लो। मैंने अपने टाइम पे, मेरे को पता ही नहीं था कोर्सेज के बारे में, तो आई डिड समथिंग कॉल्ड एमएस फाइनेंस। सबसे पहले ये मेरा सबसे मेन है। इफ समबडी आस्क सर आपका नॉलेज किस पे बेस्ड है, मास्टर्स इन फाइनेंस आई डिड फ्रॉम इक्फाई। देन आई वेंट अहेड इनटू सर्टिफाइड ट्रेजरी मैनेजमेंट, मेरे को ट्रेजरी में कोर्स करना था। सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में सर्टिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर सीपीएम, सीआरआईएम क्रेडिट रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजर, इंश्योरेंस पे कोर्स किया मैंने। सर्टिफाइड हेज फंड प्रोफेशनल, मैंने हेज फंड पे कोर्स किया। ठीक है, देन आई डिड सीएफए, देन आई डिड एफआरएम। ओके, तो ये सीएफए एफआरएम तो मेरा बाद में किया हुआ है। बट ऐसे थोड़ी होता है कि आप इतना सारा प्रोग्राम करोगे। ओके, आई विल से दैट आई वाज नॉट इंटेलिजेंट दैट आई डिड दीज प्रोग्राम्स। बेवकूफी था मेरे लिए इतना प्रोग्राम्स करना। बट उस समय मेरे को जो नॉलेज था उसके हिसाब से मैं करता गया। ओके, व्हाट डू आई डू? आज के डेट पे इफ somebody डज ओनली सीएफए or adds FRM along with it, which is optional, not necessary, but does analyst stack, sky is the limit. Believe me, CFA plus analyst stack, sky is the limit. Remember, उसको जिम रोज जाना पड़ेगा, उसको जिम रोज जाना पड़ेगा। जिम मतलब उसको क्लासेस रोज करना पड़ेगा, उसको मॉक्स करना पड़ेगा, उसको क्वेश्चंस करना पड़ेगा। केवल जिम ज्वाइन करने से नहीं होगा। यू ज्वाइन द बेस्ट ट्रेनर, ओके, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। द ट्रेनर सपोज आ जाता है और वो आपके सामने ट्रेडमिल में वॉक करेगा, ट्रेनर करेगा और आपसे बात करेगा, ठीक है, और आप बोलेंगे वाह क्या बढ़िया कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू हैपन इफ यू आर गोइंग टू लिसन टू माई लेक्चर्स ओनली। ठीक है, वाह सर क्या पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है। तेरे को करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यू विल हैव टू डू, द ट्रेनर विल शो, यू हैव टू डू। तो इफ यू डोंट डू, आई डोंट बिलीव, एक टीचर थे सीए में जिनका एक बुक के ऊपर लिखा हुआ था यू डू नॉट हैव टू स्टडी एट होम। उनके बुक के ऊपर लिखा हुआ था। ओके, ही यूज टू टीच ITSM और समथिंग, मतलब वो बहुत ही खराब सब्जेक्ट पढ़ाते थे सीए का। ठीक है, एंड ही यूज टू राइट यू डू नॉट हैव टू स्टडी एट होम। एंड एवरीबडी यूज टू बी फीलिंग सो प्राउड, अरे यार मजा आ जाएगा, इनसे ट्यूशन लेना है, घर पे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, वो रटवा देंगे। मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। यू हैव टू स्टडी एट होम, बिलीव मी। सर तब मेरे को ज्वाइन करने का मन नहीं है, आपको मत ज्वाइन करो, क्लियर कट, मेरे को मत ज्वाइन करना। यू हैव टू स्टडी एट होम, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स। मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम बगल में देखोगे सर कितना बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। नो, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द स्टीयरिंग।
ओके। क्या सीए के जैसा मेहनत लगने वाला सीए में कोई हालत में नहीं। सीए में रो देते हैं, लाइफ बर्बाद हो जाती है, चेहरे का चमक चल जाता है। सीए में मंदिर मस्जिद गिरजा जाना पड़ता है रिजल्ट निकलने के लिए, भगवान प्लीज पास करा देना, भगवान प्लीज पास करा देना, तुमको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। सीएफए में ये प्रसाद का बात नहीं है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल स्टडी मटेरियल है, क्लिनिकल प्रोसेसेस है। ठीक है, तो देर इज नो दिस थिंग फैक्टर। हाँ, लक फैक्टर हो सकता है कि यू आर अटेम्प्टिंग मल्टीपल चॉइस, आपका ठीक से दिमाग नहीं चला, दैट्स पॉसिबल। पर भगवान प्लीज नहीं है, नो मंदिर मस्जिद इन्वॉल्व। ठीक है, तो CFA is a wonderful program. It changes the approach that a person has towards education system being from India. Believe me. CA plus CFA solid combination है, करना चाहिए अगर किसी में दम है तो। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूं। आई विल नाउ ओपन द हाउस फॉर क्वेरीज। सुमनोहर, Q&A में जो क्वेरीज आई है उनमें जो डुप्लीकेशन नहीं हो, जो मैंने बोल दिया वो सेम चीज नहीं हो, कुछ अलग चीज हो, उसके बेसिस पे पूछिए। Sir, only almost all Just the one second. questions. There is one query by Naina Agarwal. I can see it. She's saying that, sir, if we have done AFM classes, can we do CFA level 1 on the basis of that? So Naina, the question that you're asking is, अगर मैंने CA फाइनल का एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया है, तो क्या मैं CFA लेवल 1 अपने आप कर सकती हूँ ट्यूशंस के बिना? तो मैं इसको एक दूसरे तरफ ले जा रहा हूं। क्या कोई CFA का प्रोग्राम विदाउट ट्यूशन कर सकता है? आंसर इज यस। कोई भी लेवल के लिए कोचिंग नहीं चाहिए। आई रिपीट, क्या CFA का प्रोग्राम के लिए ट्यूशन नेसेसरी है? नो। कोई भी लेवल के लिए कोचिंग नहीं चाहिए, खासकर आज के डेट पे इतना सारा हेल्प इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो एआई है। सबसे पहले तो एआई इज देयर। आप जो भी समझना चाहते हो एआई विल क्लेरिफाई टू यू। दूसरा बात, कितना मुफ्त का यूट्यूब वीडियोस किसका किसका होगा। ठीक है, तो आप उसका हेल्प ले सकते हो अगर आपको वीडियोस चाहिए ही तो। बस एआई तो बेस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग नेसेसरी है आज के डेट पे। कोचिंग इज नॉट नेसेसरी। तो इफ यू हैव एएफएम का बेस, ऑब्वियसली कोचिंग इज स्टिल नॉट नेसेसरी। मोस्टली आप बहुत सारे चीज कवर कर दिए जो पहले डाउट्स वगैरह वो पूछे हैं। मैं द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन इज द सीए एंड सीएफए कॉम्बो। वो तो आप कवर कर दिए। अभी जो डिस्कस सीए करना वाला है। सीए वाला अगर सीएफए करता है ना, तो वो इस लैंग्वेज को समझेगा। उसके लिए आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अगर सीए वाला सीएफए करता है। बट इज्जत से करना। सीएफए को दूध भात समझ के मत करना। आप बेइज्जत करोगे सीएफए को ना, वो आपको फेल कर देगा। या इतने खराब तरह से सीएफए करोगे कि बाद में दुनिया भर बोलते रहोगे कोई फायदा नहीं हुआ सीएफए करके। जा, मेरा जो हुआ सीए करके ही हुआ। बिकॉज एक को इज्जत दे रहे हो, एक को इज्जत नहीं दे रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यस। सर, दे जस्ट वांट टू नो अबाउट द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। क्या हो सकते हैं अच्छे से किया तो। ठीक ठीक, आई एम टेलिंग यू। हम्म। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी सीएफए में क्या हो सकता है, इसके लिए आई विल टेक द एग्जांपल वंस अगेन of a certain student by the name of Sumer Bajaj. So Sumer Bajaj was a student from Assam, Guwahati. After class 12, he came to Calcutta, did his graduation from Bhawanipur College. And Bhawanipur College is not the best college in India or in, ठीक कैलकाटा में सेकंड बेस्ट मान लेंगे। तो भवानीपुर कॉलेज से किया, इसका मतलब उनका क्लास 12 में बहुत बढ़िया स्कोर नहीं आया था, वरना जेवियर से करते। And Sumir Bajaj did CFA FRM along with it through me. And today he is the Executive Director, Morgan Stanley Global Risk Management. I repeat, Executive Director, ED, Morgan Stanley Global Risk Management sits in the New York office. सो इसका मतलब इफ यू आस्क अबाउट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, 100% ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है ये प्रोग्राम करने से। बट इफ यू देन आस्क अबाउट, ओ आप बोलना चाह रहे जैसे ही मैं सीएफए करूंगा ग्लोबल कंपनीज विल लाइन अप टू हायर मी? नो। जैसे ही मैं सीएफए करूंगा ग्लोबल कंपनीज विल लाइन अप टू हायर मी? नो, इट इज नॉट दैट वे। अपॉर्चुनिटीज है, इट विल टेक टाइम फॉर यू टू चार्ट दैट अपॉर्चुनिटी। How much time? It depends upon how much depth you did the CFA program. It also depends upon आप पॉलिटिक्स जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लक, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेटवर्क दैट यू डेवलप।
तो इफ यू अंडरस्टैंडिंग, मैं इन चीजों को क्या इलेबोरेट करूं? आई कांट elaborate on office politics. I can't elaborate on luck. I can't elaborate. But CFA is a qualification which is portable across the globe. You go to UK, you go to US, you go to Europe ka any part. Okay, you go to the Middle East, you go to Australia, you go to New Zealand, you go to Canada, any part of the world. CFA qualification is looked upon with respect. And therefore, this qualification requires that you go to the gym every day. I repeat this and again, मुफ्त का qualification नहीं है. So this सर was my submission regarding the global opportunities. Yeah. और एक चीज है सर, दिस इज मोस्टली द लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट जो GCCs है, Global Capability Centers, they are hiring CFAs because they have a lot of analytical work. The GCCs, the Global Capability Centers, they are hiring CFAs. द थिंग इज दैट थोड़ा Some ब्रीफिंग students, मिल some जाए। some students, some students in the chat are asking, "Can I come to Calcutta to study CFA over there with you?" Most welcome, most welcome. Su Manohar is the क्या बोलते हैं manifestation of that. He took his bag after doing the webinar with me and he came back to Calcutta. ठीक है कि सर यहीं पे रह के करना है. Most welcome, please. And जो कैलकाटा से बाहर से आते हैं, मेरा उनके तरफ एक स्पेशल रुझान रहता है because I can understand. They need that care, they need that support, but they need to have that कैरेक्टर. कैरेक्टर के बिना नॉट पॉसिबल. एटीट्यूड कैरेक्टर नहीं होने से मेरे करीब आना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. यस. सर थोड़ा ब्रीफिंग मिल जाए, एनालिस्ट टैग क्या है, थोड़ा ब्रीफिंग। ओके. एनालिस्ट टैग क्या है उसका थोड़ा ब्रीफिंग. वेरी गुड क्वेश्चन. सबको सुनना चाहिए. बिलीव मी, इट विल टेक 5 मिनट्स एंड ये बहुत जरूरी है. ठीक. स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर, आई हैव कंप्लीटेड CFA. नाउ आई एम sitting in an interview. Question that the interviewer is asking. को स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना. सॉरी, आई डेंट शेयर द स्क्रीन. माय बैड. या. स्टूडेंट बोल रहा है आई हैव कंप्लीटेड CFA. बहुत पुअर हैंड राइटिंग है, प्लीज फॉरगिव मी. नाउ आई एम सिटिंग इन एन इंटरव्यू. क्वेश्चन पूछा गया, गिव मी एन इन्वेस्टमेंट आइडिया. ये क्वेश्चन आपसे, गिव मी एन इन्वेस्टमेंट आइडिया. स्टूडेंट का आंसर या तो होगा आई नेवर invested. I was only studying. तो उसको डोर दिखा दिया जाएगा, वो सामने दरवाजा है. स्टूडेंट अगर जानता है, उससे पूछा जाएगा तो बोलेगा आई थिंक TCS इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. स्टूडेंट ने एक स्टॉक का नाम ले लिया, TCS बढ़िया इन्वेस्टमेंट है. उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके, प्रोवाइड द थीसिस. इसका थीसिस दो. TCS का एक थीसिस दो. ठीक है. थीसिस का मतलब हुआ a rational argument on why TCS is a good investment. Now you have to go inside TCS and you have to open up the Indian IT sector. इंडियन IT सेक्टर का क्या स्टेटस है अभी? ठीक है. TCS का रेवेन्यू, TCS का एक्सपेंडिचर, TCS का कैपिटल स्पेंडिंग, TCS का पेरोल, TCL का न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, TCS में करेंसी का इंपैक्ट. तो जब आपसे पूछना चालू करेगा ना, तो जो तुम रट के आए हो घर से कि TCS के बारे में, वो सारा सुस हो जाएगा. सुस. सुस का मतलब समझते हो? गॉन. यू विल नॉट बी एबल टू आंसर एंड तुम एडमिट करोगे, सॉरी सर, आई डोंट नो इन डेप्थ अबाउट इट. आई जस्ट प्रिपेयर्ड दिस फॉर द इंटरव्यू. वहां पे भी आपको भेज दिया जाएगा घर. सपोज आपने बोला कोई स्टॉक के बारे में एंड यू आर एबल टू प्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट थीसिस.
तो उस केस में यू आर इन। तो एनालिस्ट स्टैक में देखो नाम क्या है, एनालिस्ट स्टैक। इट इज अ स्टैक ऑफ स्किल्स जो रिक्वायर्ड है। नंबर वन, you must be able to do AI augmented फाइनेंशियल मॉडलिंग। आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाना आना चाहिए। फाइनेंशियल मॉडल मतलब फाइनेंशियल मॉडल बहुत पर्पस के लिए बनता है। दो, 2 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं है, बट इन शॉर्ट आई एम सेइंग यू शुड द फ्यूचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ लॉजिक एंड यूजिंग एआई। ओके, तो it is not Excel sheet, it is the logic with which you forecast to ऑटोमोबाइल सेक्टर। आज दोपहर में 2 बजे एनालिस्ट ट्रैक में ऑटोमोबाइल सेक्टर का डिस्कशन है, 2 घंटे। एंड द सेशन इज गोइंग टू टेकन बाय इंडिया में जो फाडा का सीईओ है, फाडा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फाडा का सीईओ सहर्ष दमानी। ओके, do check it out, Saharsh Damani. Okay, he studied with me CFA way back in 2002 3 2002 2003 में पढ़ा था। मैंने इससे 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तेरा प्रूफ्स ऑफ द सेम। तो सहर्ष दमानी डिड सीएफए विथ मी 2002 2003 में किया था सहर्ष। आज के दिन वो फाडा का सीईओ है, फाडा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स। तो वो सेशन लेने वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। नवीन बैद, नवीन बैद, ही इज नुआमा का फंड मैनेजर। आई एम टेलिंग यू नेम्स ना। नवीन बैद, ओके, अलीपुर में रहता था, कलकत्ता में। नवीन बैद 2004-5 में मेरे से इंडियन सीएफए किया हुआ था उस समय, और उसके बाद 2006-7 में इंटरनेशनल सीएफए किया हुआ। एंड ही इज नुआमा का फंड मैनेजर, नुआमा फंड मैनेजर ऑफ नुआमा, ठीक है। इन्वेस्ट इन डीप डाइव, तो डिफरेंट सेक्टर्स का ये सबसे मेन है, सबसे मेन यही है हम लोग का एनालिस्ट टैक में। दिस इज द मेन स्टफ जहां पे जोर का डिमांड है। थर्ड पार्ट इज ऑफ एनालिस्ट टैक इज एआई, एआई एंड एआई। मतलब पूरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में, उस पे कैसे यूज करते लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, नॉट द जीपीटी एंड द माने दैट जस्ट प्रॉम्प्ट। ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का पूरा द फिलोसफी ऑफ यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल, हाउ डू यू स्मार्टली यूज इट, हाउ डू यू डू प्रॉम्प्ट्स, हाउ डू यू इंश्योर दैट ये पर्पस है तो क्या निकाले क्या नहीं निकाले। एआई के ऊपर सेशंस पे सेशंस है, बिकॉज एआई के बिना यू आर लाइक नेकेड एज ऑफ नाउ। एंड द लास्ट पार्ट इज करियर। हाउ डू यू क्रैक द इंटरव्यू, हाउ डू यू क्रैक द इंटरव्यू। अल्टीमेटली आपको जॉब हाथ में कैसे मिलेगा, हाउ डू यू इंश्योर यू विल बी एबल टू negotiate a better salary. So these are the 4 parts of the analyst track program. There is no parallel program to the analyst track program on this planet, because मैंने उतना ज्यादा डेप्थ से बनाया। दिस इज टेकन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेते हैं ये प्रोग्राम। माई सेशंस आर टोटल 80 सेशंस है, उनमें मेरे सेशन शायद 12 है। ओके, 12 सेशंस आर माइन, बाकी 68 सेशंस आर दैट ऑफ नुआमा फंड मैनेजर नवीन बैद, ऑफ आयरन क्लैड एसेट मैनेजमेंट फंड मैनेजर कृष्णा किल्ला, ऑफ रेयर एंटरप्राइजेस इक्विटी एनालिस्ट योर सुमंगल पुगलिया, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट पीपल फ्रॉम ह्यूज एक्सपीरियंस आर टेकिंग दीज सेशंस। दिस इज अ wonderful stuff every finance person should do. Okay, analyst track. If you ask me, sir, CFA or analyst track, I would say analyst track. Believe me, I would say analyst track any day. ठीक है, it is very very important. Placement support is there. रुदा, placement support is there, but it depends upon submissions. कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में जैसे आपको रिसर्च रिपोर्ट बनाना है 4 में से 1 कंपनीज का, या तो नेस्ले का या अर्बन का वगैरह, तो आपको बना के सबमिट करना पड़ेगा ना। इफ यू आर नॉट सबमिटिंग द सेम एंड यू आर नॉट रिप्लाइंग टू द सेम, इसका मतलब यू आर नॉट वर्थ इट। इन्वेस्टिंग में देयर विल बी इन्वेस्टमेंट कमिटी, इंटरव्यू लिया जाएगा, आप लोग को पिच करना पड़ेगा कंपनीज को। तो वो आप पिच नहीं करेंगे तो कहां से होगा। तो प्लेसमेंट सपोर्ट उनके लिए होगा, दोज हु कम टू द जिम, दोज हु सबमिट देयर रिपोर्ट्स टू द जिम। बाकी लोग के लिए प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है। So Sahil is saying that in short, Analyst Track is an application of CFA program. Yes, it is an application of the CFA program.
रेडमी नोट से कोई ज्वाइन किया, बोल रहा है आई वांट टू डू सीएफए बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद मैथ्स। तो मैंने तो दिखाया यार कि सीएफए में मैथ्स नहीं है, साफ साफ लिख के काटा था कहाँ पे, आई फॉरगॉट, कहाँ पे काटा था, यहाँ पे ना, या देयर इज नो मैथ्स। मैथ्स माने क्या होते हैं? कैलकुलस नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, एपीजीपी नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन अलजेब्रा नहीं है। I have completed my CA final exam in November. My question is, should I start CFA right now or should I go for some other course as I'm a little late because people are doing CFA along with CA now. There is no late, Ayush. There is no late at all. Matlab, whenever you start, you start. If you are in the mode, you start. Why are you comparing with others? लोग सीएफए करते हैं एट द एज ऑफ 35 40 45 50, बाद में स्टार्ट करते हैं। देयर वाज एन आर्मी पर्सन अभी रिटायर हो रहा है, सीएफए स्टार्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया। पहले मेरे से ट्रेडिंग सीख लिया, ही ट्रेड्स एंड ही स्टार्टेड सीएफए। सो पीपल हैव देयर ओन दिस थिंग। सीएफए प्लस एमबीए, सर प्लीज गाइड, प्लीज प्रोवाइड सम इनसाइट्स। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई मिस्ड इट आउट। सीएफए प्लस एमबीए, ओके, सीएफए प्लस एमबीए, हैव अ लुक। This letter is T. So this is the breadth and this is the depth. So it is said that you should have T-shaped skills. T-shaped skills matlab you are the jack of all trades, but you are the master of one. You are the jack of all and you are the master of one. This is MBA. This is CA, CPA, CFA, FRM, ACCA. Are you understanding? तो MBA इज समथिंग जो कि ग्लोबली वर्कएक्स के बाद होता है। आप अपने ग्रेजुएशन के साथ सीएफए वगैरह कर लो, 2 साल काम करो, उसके बाद एमबीए करो। इट इज स्टुपिडिटी कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कैट में बैठ जाओ और एमबीए में चले जाओ, नॉट अ गुड थिंग। एमबीए इज आफ्टर वर्कएक्स बिकॉज यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड इन एमबीए। जो लोग सीए प्लस सीएपीए सीएफए करते हैं, 2 क्वालिफिकेशंस, उनका हो जाता है पाई। दे हैव पाई शेप्ड स्किल्स, पाई। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया जनरल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और नीचे वाला पार्ट हो गया आई एम अ मास्टर ऑफ रेगुलेशंस एंड आई एम अ मास्टर ऑफ मार्केट्स। पाई शेप्ड स्किल्स, क्या बोला मैंने? पाई शेप्ड स्किल्स। तो कोई भी हालत में डू नॉट ट्रीट सीएफए एंड एमबीए एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, आई थिंक बाय द डायग्राम यू अंडरस्टूड वेल कि एमबीए अपने को हर चीज का मास्टर बनाएगा, मेरे को सब कुछ, सॉरी मास्टर ही, जैक बनाएगा। हर चीज मेरे को आता है, आई कैन ओपन अप एनीथिंग, आई कैन मैनेज एनी बिजनेस। सीएफए और सीए डेप्थ देगा अलग अलग एरिया में, सीए ऑब्लिक सीपीए ऑब्लिक एसीसी, या। Yes, sir. We have almost covered all the questions. What's Prakash is saying I have done MBA finance and now working in IB. Is it too late for CFA? No, Prakash. The fact that you have done MBA finance working in IB, if you combine CFA along with it, and better still, if you go for analyst track, you will find in 1 year's time you will be a different Prakash. People will be chaka chaunt with your light. Sorry for the mazak. And I have really shortened Suman over a number of times because he's my student. ठीक है ना? तो you don't have to think that sir कितने indecent है, किसी के बात को काट रहे हैं। अरे स्टूडेंट है ना, इसलिए। ठीक है ना? और मेरे पास वो चैट में देख रहा हूँ, इसलिए मेरे को भी फीलिंग्स आते जा रहे हैं। Can you please explain the timeline for CFA plus FRM class 12 pass out about to enter college? Abhinav, you start CFA and FRM. You will appear for FRM next May 27. May 27 में FRM पार्ट 1 दोगे, CFA दोगे आप अगस्त 27 या नवंबर 27। तो आपका 27 में 2027 में CFA लेवल 1 FRM पार्ट 1 हो गया। उसके बाद आप लेवल 2 एंड एफआरएम पार्ट 2 दोगे 2028 में, लेवल 2 एंड एफआरएम पार्ट 2 2028 में, और उस एफआरएम कंप्लीट हो गया आपका। फिर आप लेवल 3 दोगे 2029 में। ठीक है, तो 2027 CFA L1 FRM पार्ट 1, 2028 CFA लेवल 2 FRM पार्ट 2, 2029 CFA लेवल 3।
एंड ऑफ कोर्स इसके बीच में आप जॉब करने लग जाओ, यू विल स्टार्ट डूइंग द जॉब. प्रशांत इज सेइंग दैट प्लीज टेक माय क्वेश्चन. सर एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे है कि बहुत ही पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस है विच लाइक ऑन ए वेबिनार बेसिस इट इज नॉट पॉसिबल, उनको शो द फोन काउंसलर के नंबर. नंबर. You have the number क्या which we need to share or we don't have the number 797595 वाला नंबर है क्या एसएससीआई का नंबर. 75950 हाँ. हम्म. 75950 53300. So this is the number for personal counseling. This is the number for personal counseling 75950 53300. This is the number for personal counseling because some of the questions could be extremely like personalized. तो उसमें बाकी लोग क्यों सुनेंगे आपका डाउट, ठीक है ना. 75950 53300. Archit is asking CFA Foundation certificate. There is a CFA Investment Foundation program, but अगर वो प्रोग्राम करना है तो क्लास 12 के पहले ही करना चाहिए. देयर इज नो सेंस इन डूइंग दिस थिंग. इज काउंसलिंग पेड? नो, इट इज फ्री. व्हाई वुड इट बी पेड यार. ओके, इट इज फ्री पर्सनल काउंसलिंग. Okay, so it was nice interacting with you. Can you please, for my satisfaction, write down on a scale of 1 to 10, how was the webinar? It was very, very non, माने जिस तरह के वेबिनार होते वैसा नहीं था. तो on a scale of 1 to 10, how was the webinar? तो थोड़ा तो बायस होगा बिकॉज सबका नाम दिख रहा है. आई थिंक करेक्ट तभी आता है जब नाम के बिना आता है. आई थिंक ये रॉन्ग है पूछना. ठीक है, चलो. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग. माय एफआरएम बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 18th. 7 साल बाद पढ़ा रहा हूँ एफआरएम. 18 तारीख से सैटरडे संडे जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं. ओके, you want to join a short course which can be completed in around 1 year time. That's the FRM program. It's starting this Saturday and CFA program चल रहा है. कभी भी आप एंटर कर सकते हो. मोस्ट वेलकम. एनालिस्ट ट्रैक भी चल रहा है. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.